लेकर अपनी टूटी साइकिल कोचिंग भागा हूँ। एडमिशन फीस के चक्कर में रात रात भर जागा हूँ। भाग दौड़ की जिंदगी में आई बहुत थकान। एडमिशन फीस के चक्कर में बिक गए खेत मकान। उम्र हमारी 18 बरस की हर दिन मुझे सताती है। एडमिशन फीस चुकाने में उम्र बीती जाती है। देख देख शिक्षा का आलम, मन में बड़ी उदासी है, मन में बड़ी उदासी है। Thank you, Honorable Speaker Madam. With the permission of the Honorable Speaker Madam, as a young and woke mind of my country, considering it my outright duty, today I stand in favor of the motion. In the current scenario, coaching institutions are essential for competitive exam preparation and personalized education, which is not fully available in school due to time constraints and specific syllabus, which is why 75% of Indian students opt for coaching. But media reports are highlighting that these coaching institutions are charging very high fees and using unfair practices, causing stress on students, which even leads to suicidal cases. The 2024 guidelines do prohibit misleading promises or guarantee ranks to protect families who sacrifice their livelihoods for these fees. लेकिन अगर इन नियमों का उल्लंघन ऐसे ही होता रहा तो एक गरीब बच्चा जो कोचिंग की एडमिशन फीस के लिए धक्के खाता है, उसकी व्यथा बस यही हो जाएगी कि लेकर अपनी टूटी साइकिल कोचिंग भागा हूँ। एडमिशन फीस के चक्कर में रात रात भर जागा हूँ। भाग दौड़ की जिंदगी में आई बहुत थकान। एडमिशन फीस के चक्कर में बिक गए खेत मकान। उम्र हमारी 18 बरस की हर दिन मुझे सताती है। एडमिशन फीस चुकाने में उम्र बीती जाती है। देख देख शिक्षा का आलम, मन में बड़ी उदासी है, मन में बड़ी उदासी है। But this poor child can be helped by following regulations laid in an effective regulatory framework. We must know that a framework is important, but what's more important is the strict implementation. मैं यहाँ उपस्थित सभी सांसदों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम हमारे भारत के युवाओं को ऐसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने भेज सकते हैं जहाँ ना कोई नियम हो, ना कानून, और बस कोचिंग वालों की मनमानी हो? क्या हम भारत के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं? USA, UK, Canada and Australia are examples of countries that have implemented an effective regulatory framework. Honorable member, kindly conclude. In India also, violations would incur penalties. Now, I would like to anchor the ship of my words with a famous quote by APJ Abdul Kalam sir. हम राष्ट्र नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। उन्हें शिक्षित करें और राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जय हिंद। Honorable member स्नेहा राठौर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation, and that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नज़रों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं।
आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज़्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें ज़रूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।